It was day 2 of the Bihar Assembly drama, and the RJD versus BJP clash inside the assembly would put any Bhojpuri film to shame. Just take a look at what happened. As soon as the House assembled at 11 o'clock today, BJP MLAs entered the well, raised slogans, and broke chairs. There you have it. You have Tejasvi Yadav speaking, and a gentleman there from the BJP trying to do what? What exactly was this guy trying to do is something that I'll try and understand from our guests. Well, any case, slogans were raised and chairs were broken. The session was adjourned within minutes because of this unruly behavior. If it had continued, maybe no tables and chairs would have survived the wrath of BJP MLAs today. Now, ever since Bihar Deputy Chief Minister Tejasvi Yadav has been charge-sheeted in the Land for Jobs scam case, the BJP has consistently demanded his resignation. The BJP has accused the Bihar government of compromising with graft, basically not taking any action on the same. From Tejasvi's charge sheet to the collapse of the Aguvani Sultanganj Bridge, an under-construction bridge on the Ganga River that collapsed last month, the BJP demanded answers. When they failed to get a response, the leaders created this ruckus that you're seeing on your screens. And it was during Tejasvi Yadav's address that the BJP MLA Neeraj Bablu was seen brandishing a chair at him. After all the drama, the RJD is now seeking action against the MLA. On the other hand, Tejasvi Yadav continues to remain defiant and has rubbished all charges against him. His party is also alleging that the CBI is being misused by the BJP, which is also at the center, pointing out that Yadav was a minor when the alleged scam took place. माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग वास्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण शीर्ष MMGSY NDB योजना अंतर्गत रायबेर PWD रोड से पोखरिया तक के नाम से प्राकलन के अनुसार कार्य कराया गया है। ऐसा आचरण न करें जो बाध्य होकर मुझे कार्रवाई करनी पड़े। Nitish Kumar government has compromised on the issue of crime and corruption. There is complete law and order chaos. There is confusion. There is murder, rape, ransom, kidnapping taking place everywhere. And it is a horrible state of affair in Bihar. We want Nitish Kumar to come up and reply, give clarification on the issue of crime and corruption. अरे चार्जशीट 2017 में हुआ था कि नहीं हुआ था? 17 से 23 हो गया, 6 साल में क्या हुआ तो भगवान ही जानता है। मेरे पे जब 17 में चार्जशीट था, जब हम फिर से उप मुख्यमंत्री का ओथ ले रहे थे तब तो नहीं मना किया कि मत लो। अब ओथ ले लिए तो बोल रहा है कि ओथ क्यों ले लिया? पहले ही मना न करना चाहिए था। A quick chat with my guest this evening, Dr. Dhananjay Giri, spokesperson of the Bihar BJP, and Chitranjan Gagan is spokesperson of the RJD. Dr. Giri, my first question is to you. What exactly was your MLA thinking? मतलब वो करने की क्या कोशिश कर रहे थे? आप देखिए, सवाल पूछिए। सवाल पूछना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। प्रेस का अधिकार है, ऑपोजिशन का अधिकार है, सरकार का अधिकार है। लेकिन what exactly were your MLAs trying to do, brandishing a chair and breaking chairs, sir? Is this the way for our elected representatives to behave? Have we forgotten that there are cameras installed everywhere and people who vote for you are looking at all of this natak and thinking, यार हमने इनको भेजा क्यों था assembly में? ये सब करने के लिए? No, that is very right you are. But the thing is here, the government is not ready to listen. His government, Nitish Kumar put the oil in the ear and he's not ready to listen. What he told earlier, that he is having zero tolerance on corruption. Now he is sitting with a charge-seated person. He is besides him. He taken out conflict there happened because just he told me that he become charge-seated. They were having some claim on him. Now he become charge-seated. So what is there happen on zero tolerance? This is public money is floating in the water. Nobody is ready to give answer. Public, what is going on in Bihar? What you were talking, the musical chair is going on in Bihar. Chair is a pole of discord. It is a chair conflict between chair Kansas Kursi Kumar and Anaxius Tejasvi. The intergovernment internal conflict is there. Our government is not ready to listen what Nitish Kumar earlier told.
He told I am Susasan Babu and I am having zero tolerance. नहीं तो फिर क्या आप ये हरकतें करेंगे धनंजय जी? आप फॉर अ मिनट, जो आप सब कह रहे हैं मैं सारी बात मान लूं, ठीक है, मैंने आपसे शुरू से ही कहा, हर ऑपोजिशन पार्टी का किसी भी स्टेट में, हर सिटीजन का इस कंट्री में और हर प्रेस वाले का इस कंट्री में सवाल पूछना बनता है। यू आर अ पेट्रियट इफ यू आस्क क्वेश्चंस टू दोज इन पावर। तो आप अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन सवाल ऐसे पूछे जाते हैं क्या कि आपने कुर्सी उठा ली, कुर्सी तोड़ दी, गाली गलौज हो गया? This is not what we expect of our public representatives, Mr. Giri. No, see, when a state head is not keeping mum on what he told earlier, जब वही मौन बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जब मौन मंत्री बने हुए, he is not able to speak. What Sunil Singh episode last lesson, what he told in front of Nitish Kumar. See, all this RJD is trying to take the chair and fulfill the last dream of Lalu Yadav. So things are going on. And Nitish Kumar is compromising and he is having a behavior of jumping jackal from here to there. Now he is shattered because Congress... But you have compromised on the maryada of the assembly. Mr. Giri, but you have compromised on the maryada of that assembly. We are having very high respect on democracy, but the thing is here, जो सुनने को ही नहीं तैयार है, the ruling party is not ready to listen at least. तो कुर्सी उठा लेंगे, माइक तोड़ देंगे। भाई हम लोगों का पैसा है, 30% जाता है मेरी सैलरी से टैक्सेस में धनंजय जी। टैक्स पेयर के पैसे से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और आप लोगों की तनख्वाहें आती हैं। इस तरह से तो मत वेस्ट करिए। बट लेट मी गो टू चितरंजन Gagan, who is spokesperson of the RJD. Yes, Mr. Gagan, would you want to respond to what Mr. Giri is saying? Dr. Giri, आने दीजिए। अरे वो भी जनता के पैसे का। हाँ, अच्छा रुक जाइए। जनता के पैसे का और चार्जशीटेड MPs and MLAs की बात थोड़ी आगे और होगी, लेकिन फिलहाल चितरंजन Gagan जी को आने दीजिए। Mr. Gagan, would you want to respond to what Dr. Giri is saying? नहीं, प्रिया जी, आप तो सही में पूछ रहे थे धनंजय जी से। मैंने इतना बताइए, लोकतंत्र की मंदिर है विधानसभा, और विधानसभा में जनप्रतिनिधि जब ऐसी हरकत करेंगे, लोकतंत्र में ठीक है, अधिकार है, आप विपक्ष है, आपका अधिकार है, आप सवाल पूछ सकते हैं। सरकार की जिम्मेवारी है कि आपके सवालों का जवाब दे। लेकिन यह तो जो है सो सड़क पर भी ऐसा नहीं होता है, जो हरकत विधानसभा में जनप्रतिनिधि बनकर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होकर आप जो है सो कुर्सी उठा रहे हैं। आप जो है सो इससे बड़ा घिनौना और इससे घटिया क्या हो सकता है? या तो जो है सरेआम जो है एक जनप्रतिनिधि नहीं, इसको तो गुंडागर्दी कहेंगे। आप जब विधान सभा के अंदर आप जब इस ढंग से गुंडाई करेंगे तो आप बाहर में क्या करते होइएगा? आप जो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरे पर जो है सो तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं, आपका चरित्र तो पूरी दुनिया देख रही है। सीधे जो है सो मीडिया के माध्यम से सारी दुनिया देख रही है कि आप जब हाउस के अंदर जब आप गुंडाई कर सकते हैं तो बाहर आपका चरित्र क्या होगा? अपने चरित्र का परिचय भाजपा ने दे दिया है जनता की गाढ़ी कमाई से। वहां पर डिबेट हो रहा था, माननीय उप मुख्यमंत्री जो पथ निर्माण विभाग के भी प्रभारी हैं, विधायक द्वारा सवाल किया गया, उसका वे जवाब दे रहे थे। यह जो है सो सदन चलती है लोगों को आकांक्षा पूरा करने के लिए, यह एक मौका रहता है जहां पर कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के समस्याओं के या अन्य जन समस्याओं को लेकर उठाते हैं, मंत्री उसका जवाब देता है। और उस पीरियड में जब किसी ने सवाल किया जिसका जवाब माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जवाब दे रहे थे, और उस बीच में भाजपा के विधायक द्वारा कुर्सी उठाकर जो सामने दिखाई पड़ रहा है, वो अभी कोई जो है छुपी हुई बात नहीं, सामने दिखाई पड़ रहा है। अगर वहां पर गार्ड नहीं रहता तो आप तो कुर्सी चलाकर मारने जा रहे थे। आप तो माननीय मंत्री पर कुर्सी से हमला करने जा रहे थे। आप देखिए तस्वीर में कि अगर वह गार्ड नहीं रहता तो वह कुर्सी तो सीधे जो माननीय मंत्री के ऊपर गिरता। तो जो यह तो सरेआम गुंडाई है। अभी गुंडाई के बल पर लोकतंत्र में आपका भरोसा नहीं है, डिबेट में आपको भरोसा नहीं है। आप जो है सो क्या आप संदेश देना चाहते हैं? अब ऐसे जिस पार्टी में इस ढंग से गुंडाई होगी, अब उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? और उसको जरा रिस्पॉन्ड करिए, रिस्पॉन्ड करिए। आरजेडी कह रही है तो गुंडाई है, प्रिया जी, साफ गुंडाई है। और मैं आपसे जरा एक सवाल और पूछ लूं
श्रेया जी, लेट मी आंसर। एक सवाल और पूछ लेती हूँ, फिर आप दोनों का ही जवाब दे दीजिएगा गिरी जी। अरे रुक जाइए, अच्छा चलिए आप आंसर करिए, फिर मैं अपना सवाल बाद में पूछती हूँ। ये तो गुंडा ही कह रहे हैं, तो साफ साफ गुंडा ही है। अगर गार्ड नहीं होता तो तेजस्वी यादव को तो कुर्सी से मार दिया जाता। ये बिल्कुल गलत बात है। वो सिंबॉलिक तौर पे उन्होंने दिखाया उसको। और जो जनता के गाढ़ी कमाई की बात कर रहे हैं, जो हजारों करोड़ रुपए राजद के शासन काल में जनता के चारे घोटाला में जो लालू यादव खा गए, जिसके 4 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा याफ्ता घोषित किया हुआ है, जिसकी सजा राजद सुप्रीमो काट रहे हैं, वो भी जनता की गाड़ी कमाई थी। वो किसी के घर द्वार का पैसा नहीं था। और जो 1400 करोड़ का पुल पानी में बह गया, वो भी जनता की गाड़ी कमाई थी। और जिस 32-34 प्रॉपर्टी के केस में तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हुए हैं, वो भी जनता की कमाई थी। भाई हम माइनर एज में अब कैसे पैसा आ गया? कौन ऐसे आप कृष्ण कन्हैया जन्म लिए थे कि आपको लोगों ने माइनर एज में इतने सारे संपत्ति दे दिया? अगर दे दिया तो आप कहिए कि मैं अपने बाप के पाप का हिस्सेदार नहीं बनूंगा। जिसका ये संपत्ति है मैं उसे लौटाता हूं। मैं समाज में ध्रुव का उदाहरण बनूंगा, मैं विभीषण का उदाहरण बनूंगा, मैं प्रहलाद का उदाहरण बनूंगा। अपने बाप के पाप से अपने आप को किनारा करता हूं। आप कहिए, आप जनता की गाड़ी कमाई खा के बैठे हुए, आप उस दल के हैं जिस दल के राजकाल में सुप्रीम कोर्ट से कहा नहीं, आपका लोग देख रहा है, आपका सवाल है, आप सवाल पूछिए। नहीं, आपका सवाल जंगल राज है बिहार में, जिसका 88% मंत्री अपराधी हो, जिस शासन काल में 10 नाखून निकालने वाला मंत्री हो, जिसका पब्लिक देख रहा है, कितना लोग देख रहा है, सूचिता की बात करते हैं। दुनिया के लोग देख रहे हैं। गिरी जी, पॉइंट पॉइंट आपका अच्छा है। बाप के भागीदार क्यों बन रहे हैं? गिरी जी, जो पॉइंट आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा पॉइंट है। गाड़ी कमाई लूटी है। रुक जाइए गिरी जी, आपका पॉइंट तो बहुत अच्छा है। आप कह रहे हैं कि जो पुल बहा है वो भी तो जनता के पैसे का बहा है ना। अगर सवाल उस पर पूछा जा रहा है हाउ इज दैट अ वेस्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और पंडित चारा घोटाला भी, यस, तो आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई, आप ये क्या कह रहे हैं कि कुर्सी उठाना सिंबॉलिक था? ये कुर्सी सिर्फ उठी नहीं थी, ये तो कुर्सी ऐसा लग रहा था इसको मिसाइल बना के मार ही देंगे आपके एमएलए साहब तेजस्वी यादव को। ये सिंबॉलिक क्या, सिंबॉलिक कुर्सी उठाना क्या चीज होती है भाई? कि भाई आप इस कुर्सी को छोड़िए, कुर्सी को खाली करिए। आप इस कुर्सी के हकदार नहीं हैं। अच्छा। आप यू आर नॉट इंटाइटल्ड। इसी आपके पिताजी इस आजाद भारत के पहले व्यक्ति हैं, आदरणीय लालू यादव, जो कुर्सी पर रहते हुए जेल गए थे। और आप भी कुर्सी से उतरने का समय आ गया, क्योंकि उनके पाप के भागीदार आप भी हैं। बाप की कमाई हुई पाप की दौलत आपके तो नाम से धनंजय है। जी, और ये चार्जशीट में सामने आ चुका है, गवाहों ने भी धनंजय बता जी, दिया है। ये बात आपको, लोकतंत्र नहीं। धनंजय जी, ये बात आपको चितरंजन गगन जी को बोलनी चाहिए थी, लेकिन मैं ही बोल देती हूँ। एक मिनट रुकिए। आप बात कर रहे हैं इस बात की कि तेजस्वी यादव जो हैं बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वो चार्जशीट हो गए हैं लैंड फॉर जॉब स्कैम में, बिल्कुल हो गए हैं। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, शायद दे भी देना चाहिए। लेकिन एक और मंत्री महोदय हैं, मंत्री महोदय तो नहीं है, एमपी हैं, दिल्ली में अक्सर देखे जाते हैं, उनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। देश के रेसलर्स ने उन पे आरोप लगा रखे हैं मॉलेस्टेशन के, स्टॉकिंग के, हैरेसमेंट के। चार्जशीट उनके भी खिलाफ हो गई है। कहा गया है, दिल्ली पुलिस ने कहा है, ही इज लाइबल फॉर पनिशमेंट। अगर आप इन भाई साहब का इस्तीफा मांग रहे हैं तो बीजेपी वाले थोड़ा बृजभूषण शरण जी का भी इस्तीफा मांग ले तो अच्छा रहेगा। जनता शायद आपको फॉरगिव कर दे, आप जो टीवी स्क्रीन पे करते हुए दिख रहे हैं। श्रेया जी, उनको दिल्ली पुलिस ने बुलाया अपना पक्ष रखने के लिए, और अगर उसके बाद चार्जशीट में उनका नाम आता है तो मैं दावे से कहता हूं कि पार्टी उस पर सीरियसली विचार करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आ गया ना? और इसमें बिल्कुल कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी नीति सरकार में ये जीरो टॉलरेंस है। ये तो आपने नेताओं वाली बात कर दी धनंजय जी, ये नेताओं वाली बात कर दी। अगर नाम आएगा तो सरकार कार्यवाही जरूर करेगी। बिल्कुल नेताओं वाली बात है ये, क्योंकि नाम आया है और दिल्ली पुलिस ने बोला है कि इन महाशय ने 6 विमेन रेसलर्स को हैरेस किया है, मोलेस्ट किया है और स्टॉक भी किया है, एंड ही इज लायबल फॉर पनिशमेंट। ये बात पिछले 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दी है। अभी तक एनी मूवमेंट टू सैक बृजभूषण शरण सिंह, नो। Anyhow, we'll leave it there for the moment. Thank you very much. बिहार की डिबेट्स हम लोग बहुत ज्यादा करते नहीं है, बट आज आप लोगों से बात हुई तो अच्छा लगा। डॉक्टर धनंजय गिरी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर चितरंजन गगन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जो बात अच्छी नहीं लगी वो ये है कि दिस इज हाउ पब्लिक मनी इज बीइंग वेस्टेड इनसाइड अ असेंबली इन दिस कंट्री।
Slipping into a quick break on the show. Coming up next, we have something for you to smile about, something very positive. So do stay with us.